Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, this is your social science class and today we will read Social Science, Social and Political Life volume 2nd class 7th. Okay, and students, today we have to start from chapter number 10. Okay, chapter number 10, and the chapter number 10 is Struggles for Equality. Okay, and today we will read from page number 120. Okay, and this is video third. All right students, video third of chapter 10. All right, so let's start. Creative expression against inequality. Okay, creative expression means होता है रचनात्मक अभिव्यक्ति. Okay, रचनात्मक एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति करना अगेंस्ट इनइक्वलिटी, असमानता के विरुद्ध. ओके, सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वलिटी, असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति. ऑलराइट. While some join protest movements to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. Writers, singers, dancers, and artists have also been very active in the fight against inequality. Often, poems, songs, and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. Okay, so while some join protest movements to fight inequality. Okay, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं. ठीक है. Other might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. Okay, और कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी पेन, अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं, ठीक है, अन्य कलाओं जैसे लेखक, ठीक है, लेखन से, या जैसे सिंगर्स, डांसर एंड आर्टिस्ट, और जैसे कि नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग करके ध्यान आकृष्ट करते हैं. ओके, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं. ओके, लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी स्टूडेंट्स असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं. ओके, राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड आर्टिस्ट हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिव द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी. ऑलराइट, तो राइटर्स, लेखक, सिंगर्स, गायक, डांसर, नर्तक, आर्टिस्ट, कलाकार, ठीक है, हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी. तो वे लोग भी क्या करते हैं, असमानता के विरुद्ध संघर्ष में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situations. Okay, often poems, songs and stories, प्रायः कविताएं, गीत और कहानियाँ कैन ऑल्सो इंस्पायर अस, हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं. ठीक है, और एंड मेक अस बिलीव स्ट्रांगली इन एन इशू एंड इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट्स टू करेक्ट द सिचुएशंस. ठीक है, तो ये जो कहानियाँ, गीत हैं, ये न सिर्फ स्टूडेंट्स हमें प्रेरित करते हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करते हैं. ओके, और वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में, करेक्ट द सिचुएशन, सही स्थिति में चलना और सही दिशा में चलना भी सिखाते हैं. ऑलराइट, now next paragraph, the Indian Constitution as a living documents. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान. ओके, एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, एक जीता हुआ दस्तावेज. ओके, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज. The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movements and struggles for equality of India continuously refer to the Indian Constitutions to make their point about equality and justice for all. The fish workers in the Tawa Matsya Sangh
hope that the provisions of the Constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the constitutions, they use it as a living document. Example, something that has real meaning in our lives. Okay, real meaning in our lives. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Okay, so the foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. Okay, तो न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है, मनुष्य की समानता का ही वह होता है. एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, रिकग्नाइजेज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स. ठीक है, जैसा कि आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है. ठीक है, सो मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी इन इंडिया कंटिन्यूअसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है और देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं. द फिश वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the constitutions, they use it as a living document. Okay, example, something that has real meaning in our lives. Okay, तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का जो आधार है, ठीक है, तवा मत्स्य संघ के मछुआरों के आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं. ठीक है, तो अपनी बातचीत के में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच में कोई अर्थ रखता हो. ठीक है, in a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Okay, तो लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए. ओके, तो ये सब उसका क्या करता है, लोकतंत्र का दायरा इस प्रकार से बढ़ता जाता है, इस दिशा में हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मामलों में, ठीक है, अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए. ऑलराइट, इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में या जनतंत्र में देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज. ओके, तो लोकतंत्र में अपनी बातचीत में, ठीक है, अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो. और लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट. Issues of equality are central to a democracy. Okay, issues of equality are central to a democracy. In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. These, as you have read, include the privatizations of health services in the country, the increasing control that business houses exerts on the media,
the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country. Okay, so issues of equality are central to a democracy. तो जो समानता के जो issues हैं वे लोकतंत्र के केंद्र में हैं. ठीक है, तो समता का मूल्य, समानता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है. इन दिस बुक, इस पुस्तक में, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. Okay, और इस पुस्तक में कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया गया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं, चैलेंज पैदा करते हैं. These, as you have read, include the privatizations of health services in the country, the increasing control that business house exerts on the media. Okay, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. Their issues substantially affect poor and marginalized community and therefore concern economic and social equality in the country. Okay, so these, as you have read, include the privatization of health service in the country. ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जैसे कि पढ़ा कि हमारे देश में कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र की क्या हैं, चुनौतियां हैं. ठीक है, ये सब क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं. दीज इशू सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर. तो ये जो मामले हैं, ये जो मुद्दे हैं, सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं. किसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और उपेक्षित समुदाय को. ठीक है, और उपेक्षित समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री, और ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं. ओके, This is the core of the struggle for equality in a democracy. Okay, the dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families and if they are not discriminated against. Okay, this is the core of the struggle for equality in a democracy. लोकतंत्र के लिए समता यानी समानता. ओके, लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष करना. ठीक है, कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है. ठीक है, कोर है, महत्वपूर्ण तत्व है. द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर their families and if they are not discriminated against. Okay, the dignity and self respect of each person. dignity means मर्यादा. ठीक है, तो मर्यादा, गरिमा और सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान या स्वाभिमान. तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए. ओके, तो लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं. व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of
eminent women who played the role of judges. This people's jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases. Okay. सो 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की और लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद दी कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ओके, तो 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की लोगों की इस ज्यूरी ने सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ओके, What role does the constitutions play in people's struggle for equality? Okay, students. So, what role does the constitutions play in people's struggle for equality? समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स और इसको करने का कोशिश करिए अपनी रफ कॉपी में। अगेन आई एम टेलिंग यू, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Can you make up a social advertisement on equality? You can do this in a small group. Okay? तो स्टूडेंट्स, क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो? सोशल एडवर्टाइजमेंट सामाजिक विज्ञापन, ठीक है, इक्वलिटी समानता। तो क्या आप एक ऐसे छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये सामाजिक विज्ञापन आपसे तैयार हो सकता है तो सामाजिक विज्ञापन हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। ठीक है, जैसे कि सामाजिक विज्ञापन हमने रेलवे क्रॉसिंग के बारे में बताया था ना आप लोगों को, तो ऐसे ही कई चीज़ों के बारे में सामाजिक विज्ञापन होता है। तो अब आपको कोई सामाजिक विज्ञापन समानता के लिए बनाना है, तो अगर आप बना सकते हैं तो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। ओके, डू फॉर इट और इसको अपनी रफ कॉपी में करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज close. Okay, and tomorrow I will be back with other topics. Okay, so till then students, take care, bye bye, have a nice day. Thank you very much.